So we start with practical question number 38 and cash flow from operations we have to calculate. Full cash flow statement we have to prepare. So we'll start with the operating, and in operating we need at first net profit before tax. So check कीजिए net profit before tax, reserve and surplus. Reserve and surplus in shareholders fund is given profit and loss balance 4 lakh and 3 lakh 50,000, correct? And it is getting reduced, balance is getting reduced, it means it is loss, net loss before tax, net loss before tax. कैसे लिखेंगे आप? यहीं पर निकल आप, because there is no other items there, we can directly write here net loss before tax, that is 4 lakh, that is 50,000, to be shown in bracket, to be shown in bracket. Then we come to adjustments. What are the adjustments given? Number one is depreciation on fixed tangible assets. This is a balance sheet given to you. Additional information is given. You have to see what are the items which are required for your activities and just pick and drop them there. Depreciation, how much? 1,20,000. Interest on long term borrowing 36,000. No other item is given. Like, what could be the other items? What could be the other items? Provision for doubtful debts. There can be amortization of goodwill, patent, trademark, right? There can be preliminary expenses, payment of preliminary expenses, right? There can be loss on sale of fixed assets. Nothing is given, but you should know. So, and no item of GRIDD is given. Those 4 income from investment like shares, dividend we receive, long term loans we have given, उस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, no rental income is not there, right? Gain on sale of asset is not there. Also decrease in provision for doubtful debt. These 5 में से भी कुछ नहीं है. तो हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. एवरीबॉडी डू इन द नोटबुक. Operating profit before working capital changes. 1,20,36 1,56,000 में से 50,000 तो माइनस होना है. 1 lakh, it depends upon the amount. 1,06,000 क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. अब आप जरा इसमें ढूंढिए बैलेंस शीट में व्हाट आर द आइटम्स ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज एंड करंट असेट्स, हम इसमें 2 चीजें ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं. ऐड
add and less, add and less। तो ऐड करेंगे हम, क्या देखते हैं करंट असेट्स पे व्हाट इज गिवन, इन्वेंट्री 1 लाख क्या हो गई, इंक्रीज, इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या होती है, लेस, इंक्रीज इन इन्वेंट्री हाउ मच, 1 लाख। Also increase in trade, how much, 80,000। यह है increase in current assets, increase in current assets is subtracted, then there is trade payables, trade payables, increase in trade payables, current liability क्या होती है वो, add, increase in trade payables how much, 10,000, it becomes 1,16,000। उसमें से ये दोनों माइनस 1,80,000, 1,80,000 उसमें से माइनस हो गया, तो ये हो गया नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अरिंदर आई बात समझ में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,16,000 इनफ्लो एंड लास्ट में जाके 1,80,000 आउटफ्लो, इट मींस 64,000 लॉस आ गया, लॉस नहीं कहेंगे इसे, इट इज नोन एज आउटफ्लो। ये पहला आंसर आपने अमाउंट कॉलम में लास्ट में लिखना होगा। द फर्स्ट अमाउंट वी हैव रिसीव्ड कैश यूज्ड इन, नॉट कैश फ्रॉम, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वुड मीन इनफ्लो ऑफ कैश, इट इज कैश 1,80,000 माइनस और 1,16,000 प्लस, भैया जरा समझ, हाँ घाटा मत उठा लेना बिजनेस में, हाँ पता चले वहां कोई 2,000 का नोट दे। 64,000 इज यूज्ड इन ऑपरेटिंग, ये हो गया। अब वी हैव टू मेक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और इसमें तो असर दी नहीं है, तो लिखिए वर्किंग नोट में नेक्स्ट पेज में बनाइए, कौन सा अकाउंट, फिक्स्ड, नेक्स्ट पेज में बनाओ, इसके नीचे ही करना है अभी, ऑपरेटिंग के नीचे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इसके नीचे करना है, वो अलग बन रहा है अकाउंट वर्किंग नोट में। फिक्स्ड टेंजिबल असेट अकाउंट, फिक्स्ड टेंजिबल असेट अकाउंट, फिक्स्ड टेंजिबल असेट अकाउंट। द फिक्स्ड टेंजिबल असेट अकाउंट जो बनेगा वो भी हम यहां पर बनाते हैं, फिर मिटा देंगे इसे। तो क्या है उसका ओपनिंग बैलेंस, टेंजिबल असेट का ओपनिंग बैलेंस 9 लाख,
क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन बाय डेट 1 लाख, ये हो गया आपका 13,20,000 13,20,000 माइनस 9 टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर है ये। युवराज, व्हाट इज दिस बैलेंसिंग फिगर? 4,30,000 which is purchase of asset. 4,20,000 which is purchase of fixed asset. It is purchase of fixed asset. 4,20,000 not given in the question. Investing में you have to write this amount. Investing activity में immediately after this you have to write this amount. Fixed asset purchase की है हमने 4,20,000. 4,20,000. Okay. ये उतार लो और उसके बाद फिक्स्ड एसेट अकाउंट, इसी के नीचे वी विल कंटिन्यू। ये था आपका ऑपरेटिंग बी आ गया आपका इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या करा हमने इसमें? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहां पर लिखेंगे आप परचेज ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल असेट 4,20,000। ये भी माइनस में आ रही है, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। Here also it is outflow of cash. It is also outflow of cash flow from investing activity. इन्वेस्टिंग में डायरेक्ट है ऐसे लिख दिया, मतलब और कुछ नहीं दिया। और कुछ दिया होगा तो देखेंगे अभी। डायरेक्ट लिख दिया तो और कैसे लिखेंगे? अकाउंट बनाया नहीं वो वर्किंग नोट में? परचेज, ये फिक्स्ड टेंजिबल असेट अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, वो भी आप वहां पर रफ में नहीं बनाएंगे, इन फेयर, राइट, दैट विल बी फेयर। और उसके बाद जो है यहां पर आपने लिख दिया ये। अभी इसमें और भी बहुत चीजें हो सकती थी, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और सेल हो गया ऑफ असेट, वो सब भी हो सकते थे, बट इट इज नॉट देयर। सो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये दोनों आपने नोट कर लिए, बिकॉज देर इज नो मच प्लेस। चलो आ जाएगा सी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, चेक कीजिए बैलेंस शीट में, चेक कीजिए सबसे पहले क्या दिया? शेयर कैपिटल, राइट। शेयर कैपिटल इंक्रीजेस from 8 lakh to 12. It means we have issued shares of 4 lakh. तो लिखिए proceed from issue of share capital. Proceeds from issue of share capital 4 lakh.
company received 4 lakh rupees by issuing share capital. Number 2, long term borrowing 3,50,000 से हो गई है 4,40,000. When you do a full length question, you know exactly from where to pick things. कौन सी चीज कहां पर अवेलेबल होगी. Only you have to do about 30 to 40 questions of cash flow full length, and your 12 marks are sure. 12 will give 14 marks. 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर, 6 मार्क्स का बोर्ड में, और 1 मार्क्स के 2 छोटे क्वेश्चन जिसमें यही पॉइंट्स पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग. कितना आ गया? 350, 440, 90, 90,000. और क्या है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग. इंटरेस्ट पे किया था ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे. जी ये देखो ना इधर, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने ऐड कर दिया था. क्यों ऐड कर दिया था? क्योंकि आपने इससे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त क्या किया था? माइनस. जबकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं था, इट वाज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट वी हैड सब्ट्रैक्टेड इट फ्रॉम द प्रॉफिट, इसलिए हमने इसे दोबारा यहां पर ऐड कर दिया था. गलती हो गई थी ना. दैट वाज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट वी हैड टेकन इट एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हमने उसे ऑपरेटिंग में ऐड कर दिया क्योंकि पहले वी हैड सब्ट्रैक्टेड इट. नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग इट हियर. कहां पर? फाइनेंसिंग में. जहां की वो गलती है वहां हटा दिया उसे, और यहां पर उसे यस था 36,000. ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 94. टोटल 94. अरे टोटल के 4,90,000 माइनस 36. फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आ गया इसका? 4,50,000. ये प्लस में आ रहा है 4,54,000. दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 4,54,000. कहां पर? ये नहीं नहीं, ये 4,54,000 प्लस में आ रहा आंसर. इसको कॉपी कर ले एक बार. नो, अब है मेन. इसमें नाउ इज द मेन थिंग जहां पर आप आंसर चेक करेंगे. नाउ यू हैव टू चेक द आंसर. 3 आंसर आ गए आपके पास: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग. प्लस माइनस करके बताइए कितना फाइनली आपके पास पैसा आ रहा है या जा रहा है तीनों एक्टिविटी का. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. माइनस 30,000 आ रहा है. ओके, ये जब हो जाएगा आपका, आफ्टर दिस वी विल फाइंड द टोटल cash flow from operations. Either it will be outflow or inflow. Either it will be cash flow from operations or it will be cash used in operations. So in our case, it is 64 plus 420 is 484. 484 minus 454. यानी कि माइनस का 30,000. It means it is cash used in operations. Cash used in operations. Operating activity नहीं. Cash used in operations. Operations कौन सी? Operating,
investing and financing. Now I tell you the most important step. ये सब मिटा दे रहे because we have already taken the pic also. This step will tell you whether your answer is correct or not. After adding 64 and 4, 20, we got net cash used in operations. Sorry, net cash used in operations. That will be A plus B plus C. And it was how much? 30,000. 30,000. अब आई सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, करंट असेट्स की तरफ देखिए बैलेंस शीट में. करंट असेट्स, कैन यू सी? आपने जब करंट असेट ली थी ये छोड़ दिया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड ऑलवेज लीव इट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अब लिखेंगे आप, एवरीबडी पे अटेंशन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग, एट द कितना युवराज? हाँ जी, 30,000. 3,70,000 है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग किया हुआ. यानी कि जब आपने बिजनेस इस साल जो स्टार्टिंग में देखा, स्टार्टिंग में आपके पास टोटल कैश और कैश इक्विवेलेंट जो था वो कितना था? 3 लाख. इस पूरे साल में 30,000 यूज हो गया, उसमें से कितना बचा? 340. आपका आंसर आ रहा है? बुक में भी होना चाहिए बैलेंस शीट में 340. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड 340 दिखा रहा है. आंसर चेक हो गया. अगर आपका ये 30,000 गलत आता या ऑपरेटिंग में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इफ एनी ऑफ द कैलकुलेशन इज रॉन्ग, द अमाउंट इज रॉन्ग, तो ये 30,000 नहीं आएगा, तो कुछ और आएगा. यहां पर 30,000 प्लस में आ रहा होता तो आपका आंसर आता 370 प्लस 30 प्लस में 4 लाख. वहां तो आंसर कुछ और दिया. वहां तो ऑलरेडी बता रखा है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड इज दिस. करंट ईयर में दिखा रखा ना, तो दिस वे यू कैन चेक द आंसर. फिर आप यहां पर लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट at the how much? 3 lakh. सर अगर वहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देंगे तो यहां पर छोड़ देना, दो इट इज गिवन इन एवरी क्वेश्चन. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या तो सीधे सीधे दिया होता है या उसके आइटम्स दिए होते हैं कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया अलग अलग, और ट्रेड क्रेडिट दिया है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज दिया है, शॉर्ट टर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है, या आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया है. ऑल दोज आइटम्स विल बी गिवन एंड यू कैन वेरी इजीली चेक योर आंसर एट द एंड. गॉट एवरीवन? ये फुल लेंथ क्वेश्चन है जिसका ये लास्ट पार्ट इज ऑफ 1 मार्क. मतलब लास्ट में ये करना ही है आपने. इट इज ऑफ 1 मार्क. ये आपका आंसर भी चेक हो जाता है एंड ऑल्सो इट गिव्स यू मार्क्स एक्स्ट्रा. ऊपर जो है आपने अकाउंट बनाया, एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, 1 मार्क और 1.5 मार्क. 2 मार्क्स का आपका लगभग ऑपरेटिंग और 1 मार्क लगभग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. क्योंकि इन्वेस्टिंग का जो है वो आपने उसमें निकाल लिया होता है इन द अकाउंट्स विच यू प्रिपेयर ऑफ डिफरेंट असेट्स. फाइनेंसिंग में भी कोई ज्यादा नहीं होता है. इंक्रीज इन शेयर्स, डिक्रीज इन पेमेंट, जो आप पेमेंट करते हैं उससे कैश डिक्रीज होता है, तो वही आइटम्स उसमें आते हैं. एंड दिस वे यू कैन सॉल्व अ फुल लेंथ क्वेश्चन. एंड आफ्टर डूइंग ऑल द एक्सप्लेनेशन एंड so much of discussion and all, we have done it in 20 minutes. So it can be done
very easily in 12 to 15 minutes. 15 मिनट से ज्यादा आपने कैश फ्लो के क्वेश्चन में वेस्ट नहीं करना है. More than 15 minutes means you are wasting time or you are taking time of other questions. So be very sure that though it is a simple question, right, but there was an account to be prepared, right? Net profit before tax, there were some items in the operating activities, there were some items or one item in the investing, 3 items in the financing. Altogether the question contained around 10 to 12 different items. Average में इतना ही होता है, 12 to 18 items, and it should be done within 15 minutes. Within 15 minutes, not more than that time. So one question I will give you, and you can do that question and see whether you can do it or not. Quick Gains Limited, ये question होगा आपके. Following are the balances of Quick Gains Limited. अभी मैंने उसमें देखा था, उसी के आगे जाओ, पीछे नहीं जाना. मिल गया? Quick Gains Limited. सबसे पहले this is such an important question, important पे टिक कर लो उसे, which can be asked in the boards also. Such type of question. Question है practical question 39A है मेरी बुक में. Following are the balance sheet of Quick Gains Limited. Shareholders fund, share capital 2 lakh and 2 lakh. Reserve and surplus 1,25,000 and 20,000. मिल गया? नीचे notes, short term provision, provision for tax, proposed dividend. So net profit before tax, इसमें आपका 1 मार्क का अलग से हो गया, निकालो. Almugis, net profit before tax within 3 minutes calculate, क्योंकि इसमें सारे आइटम दिए हुए. उसमें इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व दिया है, प्रपोज डिविडेंड दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, फिक्स्ड असेट अकाउंट भी बनना है इसमें, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनना है इसमें. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. अ वेरी गुड क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स. मॉडल क्वेश्चन. इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया नीचे 72,000. क्या बेटा? नहीं, सही से चेक करो. रिजर्व एंड सरप्लस यू सी बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है 1,25,000 एंड 20,000 दिया है. 1,05,000 हो गया आपका प्रॉफिट. उसमें आपने ट्रांसफर किया प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का कितना है? प्रपोज डिविजन नीचे देखो, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में इन द एडजस्टमेंट्स प्रपोज डिविडेंड इज 20,000. प्रपोज डिविडेंड इज 20,000. 2 साल का दिया है ना, तो कौन सा लेना होता है? अच्छा सॉरी, ईयर इधर है. प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर एंड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर. करंट ईयर के लेने दोनों. तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 15,000 एंड प्रपोज डिविडेंड है 28,000. ये ऐड कर दो दोनों. एड प्रोविजन फॉर टैक्स, एड प्रोविजन फॉर डिविडेंड. 28,000 एंड 15,000, 1,48,000. 1,48,000 provision for tax made during the year.
ठीक हो गया? असेट अकाउंट बन रहा है, वो असेट डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर असेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट नहीं होती। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ना। ये कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ी बना रहे हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब आप बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर पहले हेडिंग के बाद ये वर्किंग नोट में सबसे पहले आप नेक्स्ट पेज में कर लीजिए। इन द वर्किंग नोट कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद जो है नाउ कम टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेप्रिसिएशन होगा, इंटरेस्ट होगा, अगर कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है उसको देखिए आप, इंक्रीज इज एडेड, डिक्रीज इज सब्ट्रैक्टेड। उसके बाद आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है कोई तो वो देखिए। पहले तो वो बनाइए दो अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड फिक्स्ड टेंजिबल अकाउंट, क्योंकि वहां से प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा, परचेज पता चलेगी। तो गो एंड डू द क्वेश्चन इन सीक्वेंस so that आपको आइटम्स मिलते रहे। So that is all for today. Practice the questions and come back tomorrow.